yes ma'am. चलिए ठीक है. Now we may display the very first slide. ठीक है. अच्छा जी, ये पहली स्लाइड है which is displayed. What is communication? आप सब लोगों को ये displayed है स्लाइड respective participants? जी Yes ma'am, slides are visible ma'am. चलिए ठीक है, बस we just starting off. अच्छा जी जी, what is communication? Yeah, these are 3-4 bullet points. I'll just read them aloud and then I'll explain it over to you. Communication is the exchange of ideas, views, and thoughts on a particular subject between two or more individuals. It is a process that is considered to be the lifeblood of every organization. Good communication saves time, reduces mistakes, and promotes the objectives of individuals and organizations. It is a valuable asset in your career enhancement. ये 3-4 बेसिक पॉइंट्स हैं कम्युनिकेशन के. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लफ्ज कम्युनिकेशन लैटिन जुबान है जो कि यूरोप में एंशिएंट उनकी जुबान होती थी लैटिन. ये कम्युनिकेशन का लफ्ज उससे डिराइव या अखज किया गया है. एक लैटिन वर्ड है कम्युनस, उससे ये लफ्ज अखज किया गया है. इट स्टैंड्स फॉर अ नेचुरल एक्टिविटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स to convey their opinions, information, feelings, and thoughts through words, symbols, and body language. अच्छा जी, it is always a two-way process. Always a two-way process से मुराद ये है कि एक तरफ एक सेंडर होता है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का आगाज करता है और दूसरी तरफ रिसीवर या रेसिपिएंट होता है जो उसका थॉट प्रोसेस सुनता है या उसका ऑडियंस होता है. एक जो फर्द है वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता प्रोफेशनल सेटिंग में. इट इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस इन विच 2 और more than 2 people are involved. अच्छा जी, गुड कम्युनिकेशन सेव्स टाइम. नेचुरली हम ये कह सकते हैं कि जो गुड कम्युनिकेशन है द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, जिस तरह इंसानी जिस्म है, इंसानी जिस्म में जो मेन ऑर्गन है वो हार्ट है. हार्ट इज द वन हु पम्प्स all the blood to all the organs and nerves etc. जब इंसान का हार्ट बंद हो जाता है तो ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, वो भी काम करना खत्म हो जाती है. ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइफ ब्लड है या उसका हार्ट की जो हैसियत रखती है वो एक अच्छी कम्युनिकेशन प्रोसेस है. What is an organization? हम ये कह सकते हैं कि an organization is a group of people associated for business, political, professional, social or any other purposes. Its activities require human beings to interact and react, that is to communicate. जो लोग हैं ना organization के अंदर, they exchange ideas, they make plans, they order the supplies that they need, they make rules and proposals, etc. so that the organization can function smoothly and properly. So we can say that communication is and having said that, we can further say that communication is the lifeblood of every organization. अगर आप एक स्कूल में काम करते हैं, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका वो इदारा है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, whether it's a bank, it's a religious institution, or it's a bank, it's a commercial institution or educational institution, whatever it is, it cannot function without rules and regulations and people. And in order for the organization to function properly, people in the organization who work together for a goal, they need to communicate. ठीक है? अच्छा, it is a valuable asset that is needed that is helpful in your career enhancement. इसका ये हम समझ सकते हैं that if you can
communicate effectively in speaking, reading, writing, and listening, you have a highly valued skill. यानी कि आप ये सोचें कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम्युनिकेशन ही पुअर है, लोग एक दूसरे तक बात अपनी तरह प्रोफेशनल बात सही तरीके से नहीं पहुंचा रहे, उसमें टाइम का भी ज़िया है, एसेट्स का भी ज़िया है, ह्यूमन वर्कफोर्स का भी ज़िया है, और हमारे क्या होंगे, प्रोफेशनल टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए. You just consider the wasteful cost of unclear, incomplete, inaccurate messages. और इन मैसेजेस का क्या क्या प्रोफेशनल लाइफ पे असरात मुरतब होते हैं नेचुरली. वो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो टारगेट्स हैं, they might fall short of the targets and it may lead to professional losses as well. I hope respected audience, respected participants, यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलें. मैम आपकी स्लाइड करंट स्लाइड नंबर 2 है इस टाइम. अभी हम व्हाट इज कम्युनिकेशन, अभी हम पहली जी स्लाइड मैम. पे हैं. जी मैम ठीक है. मैं ये फीडबैक लेना चाह रही हूँ कि आया यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, हम आगे चलें. ठीक है, गुड. अच्छा जी, नेक्स्ट है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. हम जो भी काम लाइफ में करते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई ना कोई मकसद होता है. यहाँ पे हम प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो हमारा हम ये डिस्कस करेंगे कि मकसद क्या है, कम्युनिकेशन का मकसद क्या है. We may say that broadly speaking, we communicate to A, inform, and B, persuade. यानी inform है अपने टारगेट ऑडियंस या पोटेंशियल कस्टमर्स को हमने अपनी गुड्स या अपनी सर्विसेज के हवाले से इंफॉर्म करना है, उनको बताना है. बी, परसुएड यानी कायल करना. अच्छा, मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका यू नो दिस टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, यू लॉन्चिंग अ न्यू सर्विस, या आपका यू वर्किंग इन अ बैंक, यू वर्किंग इन अ मार्केटिंग एजेंसी, आपके बैंक ने कोई नई सर्विसेज ऑफर की हैं कस्टमर्स के लिए, या आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है. तो पहले तो ये है कि आपने अपने टारगेट कस्टमर या ऑडियंस को रीच आउट करना है, यानी कि इंफॉर्म करना है कि हम मार्केट में बैठे हैं, ये हमारा नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च हुई है. अब किस तरह इंफॉर्म करना है डिपेंड करता है. अगर आपका टारगेट ऑडियंस हजारों, लाखों या करोड़ों अफराद हैं, तो यू वुड यूज सोशल मीडिया, यू वुड यूज रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, बिलबोर्ड्स एक्सेट्रा. अगर आपका टारगेट ऑडियंस आपको दे आर फ्यू एंड सिलेक्टेड, आप उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं. यू मे जस्ट प्लान टू गो या इनवाइट देम ओवर एंड यू मे गिव अ प्रेजेंटेशन अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस. दूसरा पार्ट है कायल करना. पहले तो आपने बता दिया मार्केट में अपने पोटेंशियल कस्टमर्स या ऑडियंस को. दूसरा, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आपने कायल करना है उनको कि आपकी प्रोडक्ट या आपका सर्विस मार्केट में मौजूद तमाम कंपेटिटर्स के मुकाबले में बेहतर है. किस तरह कायल करेंगे, आप इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस के बारे में या कस्टमर के बारे में लेनी है, अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. Facts and figures, you should double check all the statistical data, numerical data, etc. ये तमाम चीजें चेक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थ्रू गुड लिसनिंग स्किल्स, थ्रू गुड स्पीकिंग स्किल्स, थ्रू गुड रीडिंग स्किल्स एक्सेट्रा, आप थ्रू गुड नेगोशिएशन स्किल्स, थ्रू योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल, आपने अपने टारगेट ऑडियंस को कायल करना है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में मौजूद तमाम कंपेटिटर्स के मुकाबले में बेहतर है. So now we may move on to the third slide, respected participants. अच्छा जी, kinds of communication. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? हम ये थर्ड स्लाइड डिस्कस करें. ठीक है, गुड इनफ. काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की कितनी इकसाम हैं? ठीक है. We classify communication
according to the number of persons to whom the message is addressed. ये मुख्तलिफ इकसाम हैं: intrapersonal communication, interpersonal communication, group communication, mass communication, verbal communication, and non-verbal communication. अच्छा जी, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज टॉकिंग टू वन सेल्फ इन वंस ओन माइंड। ठीक है, यानी खुद कलामी करना। बेसिकली आप समझ लें, अपने आप से बात करना, खुद कलामी करना। इसमें कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। जिस मिसाल के तौर पे आपका कल कोई इंटरव्यू है, यू प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, और आप अपने आप से ही अपने रूम में बैठ के अकेले से तैयारी कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग अलाउड एज वेल। आप सोच रहे हैं अच्छा जी, मुझसे मेरा जो इंटरव्यूअर है वो ये सवाल पूछेगा, मैं उसका ये जवाब दूंगा। इस टाइप की कम्युनिकेशन जो खुद कलामी होती है उसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। इसी तरह जिस तरह आप एक थिएटर ग्रुप में काम कर रहे हैं, मूवी में काम कर रहे हैं, ड्रामा में काम कर रहे हैं, तो आपको नेचुरली स्क्रिप्ट दिया जाता है। वो स्क्रिप्ट आप खुद से याद कर रहे हैं, अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के जुमरे में आता है। शेक्सपियरियन प्लेज में एक टर्म है, ड्रामेटिक टर्म, जिसको सोलिलोक्यू कहते हैं, जिसमें ऑडियंस सुन रहे होते हैं और स्टेज पे एक कैरेक्टर ऊंची आवाज में खुद से बात करता है, लेकिन वो स्टेज पे मौजूद दूसरे अफराद से बात नहीं करता। खुद से वो इसलिए बात करता है ताकि ऑडियंस उसका थॉट प्रोसेस समझ सके। उसको सोलिलोक्यू या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस between two persons. For example, a conversation, dialogue, or an interview in which two people interact. यानी ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें दो अफराद होते हैं, दो से ज्यादा अफराद नहीं होते। मिसाल के तौर पे आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, उसमें there is only one person who is going to interview you. There are not more than one people. It's not a panel of people who's going to interview you. When there is only one person involved at the other end, this type of communication is known as interpersonal communication. ठीक है? Next is group communication. What is group communication? It can be among small or large groups, like an organization, club, or classroom, in which all individuals retain their individual identity. ठीक है, यानी कि अगर आप क्लासरूम ले रहे हैं, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 40, 50, 80, even up to 100 students. When you are indulging in this type of with this number of audience, this is known as group communication. इसमें तमाम individuals जो आपकी बात सुन रहे हैं, they retain their own individual identity. आपके साथ वो सवाल जवाब भी हो सकता है, आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, वो भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। आप अगर अपने कॉलेज के हवाले से बात करें तो कॉलेज में जाके जब आप लेक्चर देते हैं स्टूडेंट्स को, यू आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, अच्छा जी, ये ग्रुप कम्युनिकेशन से मुख्तलिफ है। मास कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? इट अकर्स when the message is sent to large groups of people, for example, by newspaper, radio, or television. In this process, each person becomes a faceless individual with almost no opportunity for personal response or feedback. अच्छा, जब आपने अपना मैसेज, अपना पैगाम, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हजारों, लाखों या कई दफा करोड़ों अफराद तक पहुंचाना है, तो आप ग्रुप कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आपने अपना पैगाम किस तरह पहुंचाना है? आप सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, प्रिंट मीडिया का सहारा लेंगे, टेलीविजन का सहारा लेंगे, बिलबोर्ड्स का सहारा लेंगे, और जिस तरह कि आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा, जब
पॉलिटिक्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जब उनके लीडर्स बहुत बड़े जलसे जुलूस मुनक्कद करते हैं, उनके जलसे जुलूसों में हजारों नहीं लाखों अफराद की शिरकत होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, ये है ग्रुप कम्युनिकेशन में every individual retains his or her personal identity. Mass communication में the ones who are listening to your message they become faceless individuals. Faceless individuals से क्या मुराद है? ये मुराद तो नहीं है कि उनका फेस नहीं है। Faceless individual से मुराद है कि वो जो बंदा जो इंसान उनसे बात कर रहा है, the sender of the message, उससे वो फेस टू फेस तो देख रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस लाखों अफराद सवालों जवाब तो नहीं कर सकते। तो वो किस तरह उसको रिस्पॉन्स या फीडबैक देते हैं? वो अपने तालियां बजा के, हाथ उठा के अपने लीडर को मैसेज देते हैं कि यू नो वी आर ऑन द सेम पेज एज यू, हम आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन वो लाखों अफराद सवाल जवाब उससे इस फोरम पे एटलीस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज verbal communication. What is verbal communication? It means words written or spoken. Verbal communication consists of speaking, listening, writing, reading and thinking. आप अगर ईमेल लिख रहे हैं, मेमो लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, फेस टू फेस लेक्चर दे रहे हैं या लेक्चर को सुन रहे हैं, यू आर मेकिंग नोट्स इन दिस प्रोसेस, सो यू आर इन्वॉल्व्ड इन verbal communication. अच्छा, last one is non-verbal communication. What is non-verbal communication? It includes using of pictures, signs and gestures and facial expressions for exchanging information between two or more than two people. It is done through sign language and action language as well. It is known as para language. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारी हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। द वे वी एंटर अ क्लासरूम, हमारी बॉडी एक्सप्रेशन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, हाउ वी यूज आवर हैंड्स जेस्चर्स, वेदर वी मेक आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स और वी एवेड देम, हमारी जो आवाज है उसकी पिच क्या है, हाई टोन है, लो टोन है, मोनोलॉग है, मोनोटोन है, ये तमाम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जुमरे में आती हैं। एंड लेट मी टेल यू रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मच मोर पावरफुल दैन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें आपकी टोन ऑफ द वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक वर्बल कम्युनिकेशन है, हाउ आर यू, ये वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल के जुमरे में आता है किस टोन से आप बात कर रहे हैं, हाँ जी कैसे हैं आप, तो ये थोड़ा सार्कास्टिक टोन है, कैसे हैं आप, ये एक पोलाइट, फ्रेंडली और प्रोफेशनल वे है। तो किस टोन में आप बात कर रहे हैं, ये टोन भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जुमरे में आती है। रिस्पेक्टेड, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? अच्छा, should we move on to the next slide? Process of communication. Process of communication, ठीक है? अच्छा, communication is a process of transmitting and receiving verbal and verbal messages. Communication is considered to be effective when it achieves the desired reaction or response from the receiver. Simply stated, it is a two-way process of exchanging ideas and information. जो बात हमने शुरू में कही। अच्छा जी, इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं? मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड फीडबैक। अच्छा, मैसेज क्या है? The message is the core idea that you wish to communicate. It consists of both verbal and non-verbal messages.
देखिए हमने कोई मैसेज भेजना है किसी को तो ही कम्युनिकेशन प्रोसेस का आगाज होगा। हम सेंडर हैं लेकिन हमारे पास कोई प्रोफेशनल बात ही नहीं है कहने को, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह होगा? वो बात क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो मैसेज कहलाता है। मैसेज इज एन इंफॉर्मेशन बेसिकली रिटन और स्पोकन व्हिच इज सेंट फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अच्छा, रिटन वर्ड्स हो सकते हैं, ओरल वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर, सिंबल्स, ग्राफ्स, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेंडर। As a sender, you use symbols that express your message and create the desired response. Sender is basically the person who initiates the communication process. अगर आप कॉलेज गए हैं, आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो जो आपने तैयारी की है वो मैसेज है एंड यू आर द सेंडर। आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो इंसान आगाज करता है वो सेंडर कहलाता है। रिसीवर, the recipient of the message is influenced by context and by his or her mental filters. रिसीवर या रेसिपिएंट वो है जो आपका मैसेज सुन रहा है, देख रहा है या रिसीव कर रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ लिखी है रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स कि the recipient of the message is influenced by his or her mental filters, यानी आपने अपना मैसेज कंपोज करना है रिसीवर की एजुकेशनल लेवल, कल्चरल बैकग्राउंड और मेंटल कैलिबर के मुताबिक। एक पीएचडी लेवल का लेक्चर तो नहीं आप फर्स्ट ईयर के या अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार कर सकते, या अगर आपकी क्लास में या सॉरी आपकी कॉलेज में नॉन जो जिसको कहते हैं ना कि वो क्लीनिंग स्टाफ है, जेनेटोरियल स्टाफ है, उनको अगर आपने अपनी बात बतानी है कि वो सही तरीके से काम अपना नहीं कर रहे, तो आप अंग्रेजी जुबान में से बात नहीं कर सकते, तो उनके मेंटल फिल्टर्स के मुताबिक आपने अपना मैसेज कंपोज करना है। नेक्स्ट इज द मीडियम। मीडियम वो जरिया या जराए हैं जिनके जरिए सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है। The medium can be the printed word, email, message or sound, depending on the nature of the message. The choice of medium is influenced by the relationship between the sender and the receiver. अच्छा जी, मीडियम वो जरिया है और कम्युनिकेशन प्रोसेस की कामयाबी के लिए बेइंतहा जरूरी बात है कि सही या दुरुस्त जरिया अपनाया जाए। देखिए, अगर मैसेज बहुत अर्जेंट बुनियाद का है, इट इज अगर बहुत अर्जेंट बुनियाद का है, तो क्या करेंगे कि उस के सेंडर तक अगर वो रिसीवर आपके करीबी है तो उसके पास जाके बात कर लेंगे, या आप ईमेल का सहारा लेंगे, या आप टेलीफोन का सहारा। लेकिन अगर मैसेज बहुत लंबा और टेक्निकल और फॉर्मल है इन नेचर और उसकी अर्जेंसी भी इतनी नहीं है, तो इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड और हम उसको पोस्ट कर सकते हैं थ्रू पोस्टल सर्विस। तो डिपेंड करता है कि हमारा मैसेज का है अर्जेंट है या इतना अर्जेंट नहीं है, फॉर्मल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, और हमारा रिसीवर के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसा है। बाज़ औक़ात आप किसी ऐसे बिजनेस से मुंसलिक होते हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में फैला होता है, तो हर वक्त तो मुख्तलिफ ममालिक में जाके बात नहीं हो सकती। जूम मीटिंग अरेंज हो सकती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज हो सकती है, जिसके जरिए सब लोग एक ही मीडियम पे आके उस वक्त बातचीत कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि सेंडर का रिसीवर के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या है और मैसेज की नोयत क्या है। अच्छा जी, लास्ट इज फीडबैक। फीडबैक से क्या हो रहा है? फीडबैक इज द रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू द मैसेज। इट कैन बी अ रिटन मैसेज, एन एक्शन और सिंपली साइलेंस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, खाली चुप रहना भी एक फीडबैक ही होती है। अजीब सी बात है। बहरहाल यानी कि जो रिसीवर है वो अपना रिएक्शन या रिस्पॉन्स जो देगा ना सेंडर को, उसको फीडबैक कहा जाता है। यानी आपने अपना फॉर एग्जांपल कॉलेज में आपने अपना लेक्चर डिलीवर किया, अब आपका लेक्चर आया कामयाब हुआ या नहीं, कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका कामयाब हुआ या आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस नाकाम हुआ, ये तो फीडबैक से पता लगेगा। स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि जी आपको मेरी बात समझ आई, या तो वो कहेंगे हाँ,
या कई दफा वो कहेंगे मुझे ये बात समझ नहीं आई, कई दफा चुप भी रहेंगे। अब चुप का क्या मतलब है? चुप का कुछ भी मतलब हो सकता है। कुछ का मतलब, चुप का मतलब हो सकता है कि आया उनको बात समझ में आई है, ठीक है, बात समझ में नहीं आई तो हमने किस तरह गेज करना है? हम स्टूडेंट्स से या तो ओरली क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछना शुरू हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, और अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स बात का सही जवाब दे रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कामयाब हुआ। या हम छोटा सा एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक शॉर्ट क्विज ले सकते हैं। तो हमने वो फीडबैक जब तक ना लेंगे, हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि आया हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कामयाब था या नहीं, whether our communication process has been successful or not. The only thing that we can, the only component through which we can gauge whether our process has been communicate fruitful or not is through feedback. ठीक है, अच्छा जी, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, मुझे यहाँ तक आपका फीडबैक चाहिए। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी करेक्टली, क्लियरली? अच्छा, ये है द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 7 C's हैं, अल्फाबेट C से शुरू होते हैं, तो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में कहते हैं। टू कंपोज इफेक्टिव रिटन और ओरल मैसेजेस, you must apply certain communication principles called the 7 C's. They are completeness, coincideness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, and correctness. We will discuss all of them in a little bit of detail. अच्छा, सबसे पहले वाला जो 7 C's में से है वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस से मुराद है नेचुरली मुकम्मल, कोई चीज मुकम्मल तौर पर समझाना, लिखना या बयान करना। अब मिसाल के तौर पे लेक्चर तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो आपने तमाम इंफॉर्मेशन अपनी मुकम्मल गैदर करनी है। अगर आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स कोई ऐसी बात पूछें जो कि आप जवाब देने से कासिर हो, और प्रोफेशनली इट वुड बी क्वाइट, इट वुड नॉट बी इन वेरी गुड टेस्ट, सो टू से। जिस तरह के मैं यहाँ पे बैठी हूँ मिसाल के तौर पे, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि जो लेक्चर है, मुझे लेक्चर दिया गया है कि जी आज आपने डिलीवर करना है, कोशिश मेरी है कि पूरा लेक्चर मैं प्रॉपरली तैयार करूं। कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कोई टेक्निकल पॉइंट्स हैं, तो मुझे उन पे मुकम्मल अबूर हासिल हो। वरना क्वेश्चन आंसर सेशन के एंड में हो सकता है कि कोई ऐसे सवाल हों जो मैं जवाब देने से कासिर हूँ। इट वुड क्रिएट अ वेरी अनप्रोफेशनल इमेज इन द आईज ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर मुकम्मल अबूर हो। अगर आप बैंकिंग प्रोफेशन में भी हैं, मार्केटिंग की किसी फील्ड में हैं, जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको तमाम तर मुकम्मल इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विस की होनी चाहिए। क्योंकि जब आप पोटेंशियल कस्टमर को या टारगेट ऑडियंस से मुखातिब हैं,
तो वो आपसे उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको ना आता हुआ तो इट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग, और वो कहेंगे कि इनको तो खुद नहीं पता, हम इनसे जरूर वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदें। वो आप किसी कंपेटिटर के पास भी जा सकते हैं। इसी तरह एक टीचर से अगर कोई सवाल पूछा जाए उस्ताद से, वो सवाल का जवाब देने से कासिर हो, तो स्टूडेंट से एक तो क्या वो इंप्रेशन होगा, इट वुड क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द स्टूडेंट्स। तो मेरी भी ये दुआ है कि मैं आज के लेक्चर में मैं भी सुरखुरु हो जाऊं और तमाम सवालों के जवाब मुकम्मल तौर पे आते हों। ये तभी होगा जब मुझे अपने टॉपिक पे मुकम्मल उबूर हो। अच्छा जी, तो बेसिकली ये मुराद है कंप्लीटनेस से। हम थोड़ा ये बुलेट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। Your message is complete when it contains all the facts the reader or listener needs for the reaction you desire. As you strive for completeness, keep the following guidelines in mind. A. Provide all necessary information. B. Answer all questions asked. And C. Give something extra when desirable. मैंने बुलेट 1 और 2 तो आपको बता दिया। गिव समथिंग एक्स्ट्रा, इंटरेस्टिंग सी बात है, कई दफा आपके लेक्चर में कोई छोटी छोटी एग्जांपल्स होंगी जो आप खुद से ऐड करते हैं, कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन आप कहीं से कोई नेट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी और बुक से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उससे अगर आपका लेक्चर या आपका प्रेजेंटेशन या टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है, तो व्हाई नॉट। इससे क्या होगा कि ऑडियंस का इंटरेस्ट भी, यू वुड बी एबल टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस एज वेल। इसी तरह कंप्लीटनेस में ये, यू आर अ बैंक मैनेजर, आपके पास एक कस्टमर है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहली दफा अकाउंट खोलना है आपके बैंक में। तो अगर आपने उनको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उनको 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, आपने बताए उनको 4 हैं, वो पहले दिन आया अकाउंट खोलने, आपने कहा जी ये तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं, उसने कहा मुझे तो आपने ये बताया नहीं, आपने कहा हो फलाना डॉक्यूमेंट तो मैं बताना ही भूल गया। ऑफ हो जाए कि भाई इन्होंने मुझे इतना लाइट वे में, अनप्रोफेशनल वे में ट्रीट किया, बेहतर है मैं किसी और ही बैंक में चला जाऊं। बाज़ औक़ात हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, सेल्स पर्सन से पूछते हैं, वो किसी दूसरी जगह जाओ जहां हमें इंथुजियास्टिकली प्रॉपरली पूरी इंफॉर्मेशन तो दी जाए। ठीक है, क्लियर हो गई? एम आई क्लियर, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स अप टिल हियर? Yes, ma'am. Clear voice. चलिए ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है कोइंसाइजनेस। कोइंसाइजनेस से क्या मुराद है? अच्छा, conciseness is saying what you have to say in the fewest possible words without being wordy. To achieve conciseness, observe the following suggestions. A. Eliminate wordy expressions, and B. Include only relevant material. अच्छा जी, बेसिकली सिंपल अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो कोइंसाइजनेस से मुराद है दरिया को कूजे में बंद करना। बिकॉज हम प्रोफेशनल और बिजनेस सेटिंग्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये मैं बात करूं कि इन द फील्ड ऑफ बिजनेस लंबे लंबे जुमले लिखने, बोलने, रिपीट करना, लंबी लंबी तुमहीद बांधना, जिसका जो टॉपिक से ऑफ टेंजेंट भी हो जाए, वो एक अनप्रोफेशनल अप्रोच होती है। तमाम आपने इंफॉर्मेशन जो अपने रिसीवर या रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज है, उसको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, रेपिटेशन नहीं करनी, और लंबे लंबे अल्फाज का चुनाव, पैराग्राफ्स का चुनाव नहीं करना, लंबे एक्सप्रेशंस, इडियम्स, फ्रेजेस से इज्तनाब करना है। लंबे अल्फाज का मतलब है जहां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, वहां के बजाय कि 4 या 5 अल्फाज का इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है बिकॉज। बिकॉज का मतलब है क्योंकि। एक ये कॉन्साइज फॉर्म है बिकॉज, वर्डी फॉर्म है, लंबी फॉर्म है ड्यू टू द फैक्ट दैट। अब ड्यू टू द फैक्ट दैट 5 अल्फाज हैं, इनकी जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या कॉन्साइज लफ्ज क्या है? बिकॉज। इसी तरह एक लफ्ज है सून। सून का लंबा फॉर्म क्या है? इन ड्यू कोर्स। से काम चल सकता है
वहां पे हमने मुख्तलिफ अल्फाज और फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है ताकि बिजनेस सेटिंग में हमारी प्रोफेशनल बात क्लियरली और जल्द अज जल्द समझ में आ जाए दूसरों को. We may move on to the next slide. थर्ड है कंसिडरेशन. अच्छा, कंसिडरेशन से क्या मुराद है? कंसिडरेशन मीन्स preparing every message with the recipient in mind. हमने अपने जो रेसिपिएंट या रिसीवर है उसका सोशल कैलिबर, एजुकेशनल बैकग्राउंड को मद्देनजर रख के ही अपना मैसेज तैयार करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कामयाब हो. अच्छा, by being considerate, it also means that you do not lose your temper, you do not accuse, you do not charge the other person without facts and figures. इसका मतलब है कि अगर उनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही तो हम we should remain polite, we should not lose our temper. और हम जिस तरह ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स कई दफा होता है उनको कोई बात समझ नहीं आ रही, हम ये नहीं कह सकते स्टूपिड स्टूडेंट्स, आपको समझ नहीं आता. And what I'm saying, no, this is being respected participants, क्या अब आवाज आ रही है? There was a bit of a net issue at my end. आवाज आ रही है आपको? अच्छा, okay. Next is concreteness. ये 7 C's में से fourth one है, which is concreteness. अच्छा, concreteness बड़ा interesting है. Concreteness से क्या मुराद है? Communicating concretely means being specific, definite and vivid rather than being vague and general. The following guidelines should help you compose concrete messages. A, use specific facts and figures, and B, put action in your verbs. Concreteness एक बड़ी interesting सी चीज है. इसका मतलब है कि we should be objective in our approach in professional settings rather than being subjective. हम ये नहीं कह सकते मुझे फलां कॉलीग पसंद नहीं है या I don't like such and such student. This is a very subjective thing. ये पर्सनल लाइफ में तो बातें चल सकती हैं, प्रोफेशनल बिजनेस सेटिंग्स में ये बात नहीं चल सकती. हमने जस्टिफाई करना है प्रोफेशनल हवाले से कि हम किसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं. वी मे से एज अ टीचर आई डोंट लाइक दिस स्टूडेंट बिकॉज स्टूडेंट की अटेंडेंस बहुत कमजोर है, स्टूडेंट is not regular, student is not punctual, he or she does not attend the classes and he or she does not submit their assignments on time. It means कि हमने उनके बारे में तमाम facts and figures इकट्ठे करके ही बात करनी है. हम ये नहीं कह सकते, we cannot be vague and general. नहीं, I don't like this thing, I don't like this project, I don't like this product. क्यों?
हमने फैक्ट एंड फिगर्स पे बयान करना है. दिस इज व्हाट वी मीन बाय बीइंग कॉन्क्रीट. अच्छा जी, मैं आपको कॉन्क्रीट होने की कॉन्क्रीटनेस की छोटी सी मिसाल देती हूँ. आपको जिस तरह के पता है कि स्टूडेंट्स, जैसे आजकल अब स्टूडेंट्स के एमडी कैट एग्जाम्स हैं, ई कैट हैं, ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, हर साल ही कंडक्ट होती है. अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं कि स्टूडेंट्स के जो एमडी कैट स्कोर्स हैं दे आर हायर, तो क्या समझ में आएगा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आएगी. हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि इन द ईयर 2022 the student MD CAT scores averaged 85%, but in the year 2023 they averaged to 90 they averaged almost 90%. 2 सालों का मुवाजना हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स की परसेंटेज से. That means we are being concrete, we are being specific and definite. एक और पॉइंट है पुट एक्शन इन योर वर्ब. अंग्रेजी में हम टू फॉर्म ऑफ वॉइसेस इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को पढ़ने और बोलने और समझने भी एक एक्टिविटी का एहसास होता है. जिस तरह एक लफ्ज, एक जुमला है, the professors administrated the test. This is the active form of voice. Passive form है the tests were administrated by the professor. लेकिन पैसिव फॉर्म से बेहतर सुनने में, बोलने में एक्टिव फॉर्म होती है. So we should try to use active form of verb rather the passive one. अच्छा, ये हमारा 7 C's में से चौथा सी हो गया. नेक्स्ट है क्लैरिटी. क्लैरिटी से क्या मुराद है? Getting the meaning from your head into the head of your reader accurately is the purpose of clarity. Choose precise, familiar words and construct effective sentences and paragraphs. इससे मुराद है कि अनफेमिलियर वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज, एक तो वो हमने कही थी ना वर्डी अल्फाज, वर्डी नहीं, यहाँ पे है अनफेमिलियर और मुश्किल अल्फाज. बिजनेस और प्रोफेशनल सेटिंग्स में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए जो कि कॉमन जुबान में इस्तेमाल ना हो और जिससे और जिनके मतलब से बहुत सारे लोग अनफेमिलियर हों. मिसाल के तौर पे हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जो एवरीडे लाइफ में हर कोई उनसे यूज टू है, हर किसी को वो समझ आती है. इसका एक छोटे से लफ्ज है पे या पेमेंट. इसका एक मुश्किल लफ्ज है रिम्यूनरेशन. इसी तरह एक लफ्ज है आफ्टर. आफ्टर का मतलब है किसी चीज के बाद. उसका मुश्किल लफ्ज है, प्रिटेंशियस फॉर्म है सब्सिक्वेंट. तो रिम्यूनरेशन, सब्सिक्वेंट, ये तमाम अल्फाज और इस तरह और इसी से मिलते जुलते बहुत से और अल्फाज हैं जो कि अनफेमिलियर हैं लोग उनके इस्तेमाल से, उनके मीनिंग से. तो हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए अपनी बिजनेस और प्रोफेशनल सेटिंग्स में जो कि मुश्किल हों. कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जो हमारा सेंटेंस है ना वो छोटा होना चाहिए. एक सेंटेंस में 17 से 20 वर्ड्स हों, इससे ज्यादा ना हो. सेंटेंस जो है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से और एक जुमले का, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ यूनिटी और कोहेरेंस होनी चाहिए. यानी कि हम रैम्बलिंग आइडियाज को इकट्ठा नहीं कर सकते. मैं आपको एक मिसाल देती हूँ. एक मिसाल है कि अगर आजकल जिस तरह लाहौर में बहुत गर्मी है तो अगर हम ये बात कहें कि इट इज वेरी हॉट इन लाहौर दीज डेज इन जुलाई एंड एफल टावर इज इन पेरिस. अब दिस इज अ रैम्बलिंग आइडिया. इन दो बातों का आपस में कोई लिंक या कोहेरेंस नहीं बन रही. एक तरफ हम मौसम की बात कर रहे हैं एक शहर की, दूसरी तरफ एक शहर में बता रहे हैं कि एक मॉन्यूमेंट यानी कि एफल टावर मौजूद है. अब इनका आपस में कोई कोहेरेंस या लिंक बजाहिर हमें समझ में नहीं आ रहा. हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं इट इज वेरी हॉट इन लाहौर दीज डेज बट एट द सेम टाइम इट इज क्वाइट प्लेजेंट इन पेरिस नाउअडेज. यानी कि महीना तो वही है लेकिन लाहौर में गर्मी और पेरिस में अच्छा मौसम. तो देयर इज एटलीस्ट अ यूनिटी बिटवीन द टू सेंटेंसेस. नेक्स्ट जो 7 C's में से जो 6th C है that is known as courtesy. courtesy से क्या मुराद है? अच्छा,
True courtesy involves being aware not only of the perspective of others, but also their feeling. The following are suggestions for generating a courteous tone. A. Be sincerely tactful, thoughtful, and appreciative. B. Use expressions that show respect. And C. Choose non-discriminatory expressions. Courtesy se murad hai कि you not only show sympathy towards the other person, but you should try to put yourself in their shoes while composing a business message. Yani you should empathize with the other person as well. हमारी tone written हो या spoken हो या non-verbal communication हो, it should always generate an expression full of humility and showing humility, grace and thoughtfulness. अच्छा, expressions ऐसे हो जिनमें जेंडर बायस या रेसिज्म का शाइबा ना हो. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इन बातों पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है. वेस्टर्न वर्ल्ड में, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, they are always very they're always extra careful कि ऐसे expressions ना यूज हो जिनसे जेंडर बायस हो, जिनसे रेसिज्म का शाइबा हो. जैसे एक छोटा सा लफ्ज है मैन पावर. मैन पावर का मतलब है एक मुल्क की अफरादी कुवत. तो लेकिन अब मैन पावर का मतलब आदमी जो काम करते हैं, ये तो गलत बात है. एक इकोनॉमी में खवातीन भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं. वो खेतों में, फील्ड्स में काम करती हैं, वो फैक्ट्रियों में काम करती हैं. तो मैन पावर के बजाय एम्प्लॉइज या वर्कफोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब है. इसी तरह मेडिकल में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हम फ्रेशमैन कहते हैं. फ्रेशमैन, मैन फिर मर्द के एक बात आ गई. लेकिन स्टूडेंट्स तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मर्द भी हैं. अच्छा, I hope respected participants, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. I need your feedback up till now. Okay, now we have completed the sixth C, which is the seventh C of effective communication. It is known as correctness. अच्छा जी, correctness से क्या मुराद है? The term correctness means the following two characteristics: A, using the right level of language, and B, checking accuracy of facts, figures and words. अच्छा जी, using the right language means कि आपकी कोई spelling mistakes ना हो, grammatical errors ना हो, paragraphs में कोई paragraph composition में कोई issue ना हो. आप proof reading कर सकते हैं अगर आपका written material है. अगर आप कोई वोकल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपकी जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक और दुरुस्त होनी चाहिए. चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. अच्छा जी, इससे मुराद है कि अगर आप कोई स्टैटिस्टिकल डेटा आपकी प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व है या मैथमेटिकल कोई फिगर्स इन्वॉल्व हैं, तो यू शुड वेरीफाई योर स्टैटिस्टिकल डेटा. यू शुड डबल चेक योर टोटल्स. एंड अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप चेक करें कि जो आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक, वो कोई ऐसा फैक्ट एंड फिगर तो नहीं है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तब्दील हो गया हो. जिस तरह के मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि अब ये हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं और ये कहें कि जी अफगान वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, तो ये तो गलत बात है. अफगानिस्तान की वॉर तो 2-3 साल हो गए, खत्म हो गई. रादर आजकल 2 महाजों पे जंग चल रही है. एक गाजा वॉर है, एक यूक्रेन की वॉर है. यूक्रेन की तो पहले शुरू हुई थी, गाजा की लास्ट ईयर. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि pertaining टू द सब्जेक्ट कि जो कि आप पढ़ा रहे हैं. ज्योग्राफी भी ममालिक की तब्दील होती रहती है. करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत मुख्तलिफ चीजें होती हैं. बहुत सारे
कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के हवाले से यू शुड बी केयरफुल, यू शुड बी अप टू डेट कि आया कोई चेंज जिस तो नहीं आ गई है कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। सो तो वी विल मूव ऑन। अच्छा, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, देयर वाज अ बिट ऑफ अ नेट इशू वंस अगेन। हम ये कंटिन्यू करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स इन टू वे कम्युनिकेशन। ए, द मैसेज डज नॉट गेट थ्रू टू द रिसीवर, एंड बी, द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? ठीक है, अच्छा। अच्छा जी, कॉमन प्रॉब्लम्स इन टू वे कम्युनिकेशन। द मैसेज डज नॉट गेट थ्रू टू द रिसीवर। ये तो अभी हम गो थ्रू कर रहे हैं कि मेरा मैसेज आपको नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि एक नेट इशू हो गया। ये अभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये तो अभी हमने अभी यही हमारे साथ हुआ है। यानी मैंने तो बजाहिर अपना मैसेज आप तक पहुंचा दिया, कोई कम्युनिकेशन चैनल में ब्रेकडाउन हो गया। अगर आपने फिजिकली किसी को हाथ कोई पैगाम पहुंचाया, उस बंदे ने आपका मैसेज रिसीवर या रेसिपिएंट तक नहीं पहुंचाया। जिस तरह अभी नेट का ब्रेकडाउन हुआ, टेलीफोन का या नेट के इश्यूज हो जाए, तो आपने अपनी तरफ से तो पूरा काम किया, लेकिन कोई टेक्निकल एरर की वजह से रिसीवर तक मैसेज ना गया, तो ये ब्रेकडाउन हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस में। दूसरा है कि रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज। यानी मैंने आप तक अपना मैसेज पहुंचा दिया, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन भी ना हुई, लेकिन आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आई। दो बातें हैं ना, कि आया मैसेज आपने पहुंचाया लेकिन वो पहुंचा नहीं, और दूसरा पहुंच तो गया लेकिन रिसीवर या रेसिपिएंट को बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अच्छा, ये नेक्स्ट है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। In communication, the word barrier implies mainly something non-physical that keeps people apart or prevents activity, movement, and so on. Barrier से मुराद कोई फिजिकल चीज या दीवार नहीं है। It is something non-physical, लेकिन बहरहाल उस नॉन फिजिकल चीज की वजह से भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस में मसले मसाइल आ सकते हैं। The most commonly experienced barriers to communication are noise, lack of planning, cultural barriers, socio-psychological barriers, perception and reality, wrong and unclarified assumptions, and poor listening. Next, ये थोड़ा सा हम अभी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में। Broadly speaking, some of these barriers may be attributed to the sender and receiver. यानी कि कुछ बैरियर्स या मसले मसाइल जो हैं वो सेंडर के एंड पे होते हैं, और कुछ मसले मसाइल रिसीवर या रेसिपिएंट के एंड पे होते हैं।
अच्छा, सेंडर यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत कर रहा है उसके एंड पे क्या मसाइल हो सकते हैं? लैक ऑफ प्लानिंग, choice of wrong language resulting in badly encoded message, wrong choice of channel of communication. सेंडर जो मैसेज का शुरुआत कर रहा है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू कर रहा है, अगर उसने अपना मैसेज सही तरह प्रॉपर्ली कंपोज नहीं किया, अपना लेक्चर, अपनी प्रेजेंटेशन, अपना लेटर या मेमो, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरे नहीं लिखे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, तो ही और शी मे नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द रिसीवर. इसी तरह लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर, एक तो चॉइस ऑफ लैंग्वेज दुरुस्त हो, अनफेमिलियर डिफिकल्ट वर्ड्स ना हो, राइट लेवल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और ये ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, और एक ही जुबान हो, यानी वो उस जबान का इस्तेमाल सेंडर करे जो कि रिसीवर या रेसिपिएंट को भी समझ में आए. रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, मीडियम जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस मीडियम या जरिए के थ्रू आप अपना मैसेज पहुंचाते हैं. अगर बहुत अर्जेंट मैसेज है लेकिन आपने अपना मैसेज पोस्ट कर दिया, तो पोस्टल सिस्टम 2 दिन 4 दिन बाद गया, तो वो तो डिसीजन मेकिंग अर्जेंट होनी थी, ना हो सकी. इसी तरह स्टूडेंट्स जो हैं उनसे आपने जूम मीटिंग की जिसमें आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, नहीं, सपोज वो सो रहे हैं या दे आर नॉट अटेंटिव, तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस इतना कामयाब नहीं होगा. अच्छा, अब रिसीवर के एंड पे भी मसले मसाइल हो सकते हैं. एक है पुअर लिसनिंग, यानी कि सेंडर ने तो अपना मैसेज सही तरह फॉर्मुलेट भी किया, लेवल ऑफ लैंग्वेज भी उसकी करेक्ट थी, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी उसने सही किया, लेकिन रिसीवर इनअटेंटिव है. बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर नॉट सिंपली इंटरेस्टेड, वो फिजिकली तो क्लास में बैठे हैं बट मेंटली दे आर ऑक्यूपाइड एल्सवेयर, या उनका आपने अपना लेक्चर या लेक्चर आपने वो अच्छा तैयार किया लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे. ये ऐसे भी हो सकता है कभी आप एक प्री कंसीव नोशन किसी के बारे में बना लेते हैं कि भाई हमें इस उस्ताद से नहीं पढ़ना, वी डोंट लाइक दिस पर्सन, तो हम अब अगर एक प्री कंसीव नोशन के साथ क्लासरूम में एंटर होते हैं, तो जितना भी उस्ताद अपनी तरफ से तैयारी कर लें, कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर रिसीवर के एंड पर ये मसले मसाइल और मिसट्रस्ट है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में ब्रेकडाउन होगा और वो कामयाब इतना नहीं होगा. ठीक है. अ, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, मैं आपको आपके मैं मैसेजेस भी साथ साथ पढ़ रही हूँ. कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है. पार्टिसिपेंट्स, अब ये आपके एंड पे कहीं होगा, अब मेरे एंड से कोई ऐसा इशू नहीं है. बेहतर है आप थोड़ा जरा अपना भी चेक कर लीजिए नेट का, कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज एवरीथिंग इज फाइन बाय माय एंड एट लीस्ट. आप लोगों के मैसेजेस कुछ आए हैं, आप लोग पहले अपना चेक कर लीजिए नेट. ठीक है. जी. मैम आपकी आवाज क्लियर है, आप काइंडली कंटिन्यू कीजिए मैम. अच्छा, नहीं, मुझे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं चाह रही थी कि ये पहले हम क्लियर कर लें इससे पहले कि हम आगे मूव ऑन करें. पार्टिसिपेंट्स, मैम की वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आप काइंडली अपना माइक या वॉल्यूम चेक कर लीजिए. जी. Now we may move on to the next slide. जी, characteristics of effective communication.
Effective communication is a process of exchanging ideas, thoughts, knowledge, and information such that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner. In simple words, it is nothing but the presentation of views by the sender in a way best understood by the receiver. Acha ji. Just delivering a message is not enough. It must meet the purpose of the sender. Keeping this in mind, let us discuss the elements which makes communication effective. ये 7C से ही pertaining है, इसमें कोई बहुत नई या innovative बात नहीं है, लेकिन we should discuss it all the same. Clear message, correct message, complete message, precise message, reliability, consideration of the recipient, and sender's courtesy. Clear message. ये हमने 7Cs में भी discuss किया. The message which the sender wants to convey must be easy and simple and easy to comprehend and understand. Number 2 है जी correct message. The information communicated must not be vague or false in any sense. It must be free from errors and grammatical mistakes. Spelling mistakes नहीं होनी चाहिए, tenses का दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए, कोई grammatical errors नहीं होने चाहिए. This by being correct. अच्छा जी. Next है complete message. Communication is the base for decision making. If the information is incomplete, it may lead to wrong decisions. Respected participants, ये बहुत important है कि जो message है वो हर हाल में complete होना चाहिए. अगर आपने कुछ students के बारे में कोई भी policy बनानी, action लेना है, आपके head of department ने, principal ने, आपसे students का पिछले 3 माह का previous data मांगा है. 3 माह के data में उनका attendance record, उनकी assignments, उनका जनरल बिहेवियर, जो भी सब कुछ इंक्लूडेड है. अब आपने 3 माह के बजाय उनको आपने क्या किया कि 1 मंथ का डेटा दिया, और वो भी वो महीना चूज किया जिसमें इफेक्टिवली वैसे ही कोई नेशनल हॉलीडेज चल रही थी. तो हो सकता है कि बच्चे की स्टूडेंट की बकाया 2 माह में परफॉर्मेंस अच्छी हो, उस 1 महीने में कुछ वैसी छुट्टियां आ गई, कुछ मसले मसाइल हो गए, तो आपने उस स्टूडेंट के हवाले से जो इंफॉर्मेशन दी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वैसे ही आपने इनकम्प्लीट दी, 3 माह के बजाय 1 माह का डेटा दिया, तो जो डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग स्टूडेंट्स होगी, इट में लीड टू रॉन्ग डिसीजन. तो जब तक आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट्स, कॉलीग्स या हायर अप्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे प्रोफेशनल सेटिंग में, तो इट में लीड टू रॉन्ग डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट है प्रिसाइज मैसेज. ये भी क्लियर और करेक्ट मैसेज से ही इंटरलिंक्ड है. Sent must be short and concise to facilitate straightforward decision making. Next है reliability. The sender must be sure from his or her end that whatever he or she is saying or whatever he or she is conveying is right by his or her knowledge. Even the receiver must have trust on the sender. मतलब ये it is a two-way process. यानी मैंने जो भी information ली, कहीं से भी information gather की आपको पढ़ाने के लिए, अगर मुझे खुद भी एतमाद नहीं है, पता नहीं मैं ठीक पढ़ा रही हूँ कि नहीं, तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी. और आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपको भी एतमाद है कि मैंने जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए, जो भी टेक्निकल पॉइंट्स इकट्ठे किए, ये दुरुस्त हों. तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिलायबिलिटी. नेक्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन and other physical settings must be planned, keeping in mind the attitude, language, knowledge, educational level and position of the receiver. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. बहरहाल ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि बार बार इसका इस पूरे लेक्चर में तस्करा हो रहा है कि हमें उनका रेसिपिएंट का एजुकेशनल लेवल, कल्चरल बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक सेटअप मद्देनजर रखते हुए ही अपना प्रेजेंटेशन, अपना लेक्चर, अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस तैयार करना है.
Next is sender's courtesy. The message so drafted must reflect the sender's courtesy, humbleness, and respect towards the receiver. We may move on to the next slide. अच्छा जी, effective communication skills. Conveying a message effectively is an art as well as a skill developed after continuous practice and experience. The predetermined set of skills required for an influential communication process are as follows. यानी एक प्रोफेशनल सेटिंग्स में एक इंसान के अंदर क्या खसूसियात या खूबियां होनी चाहिए कि वो अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सके. सबसे पहला है ऑब्जर्वेंस. ये करेक्ट कर लीजिए. OBSERVANCE. ऑब्जर्वेंस से बेसिकली मुराद है कुव्वत मुशाहिदा. A person must possess sharp observing skills to gain more and more knowledge and information. जितना वो अपनी प्रोफेशनल सेटिंग में कुव्वत मुशाहिदा उसका अच्छा होगा, उसी तरह he or she will be able to judge his or her professional settings and professional people around him or her as well. Next is clarity. कि जो भी मैसेज करे वो क्लियर हो, कंसाइज हो. The message must be drafted in simple and clear words. Next is listening and understanding. Achha, the most crucial skill in a person is that he or she must be a good, alert, and patient listener. He or she must be able to understand and interpret the message well. Communication process में सबसे important जो part है वो listening, reading, speaking, thinking, writing में listening है. क्योंकि जब तक हम किसी की बात दुरुस्त तरीके से सुन नहीं respected participants, आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, ma'am. चलिए, good enough. हम listening and understanding वाले पॉइंट पे थे. तो पार्टिसिपेंट्स मैं आपको ये बात बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है लिसनिंग. हम वी में एग्री टू डिसएग्री हो सकता है, हम अपने दूसरों की प्रोफेशनल लाइफ में बात से सहमत ना हो. वी मे नॉट बी ऑन द सेम पेज, बट वी शुड बी एबल टू लिसन. हम लिसन का मतलब है खाली सुनना नहीं है, जो सेंडर बात कह रहा है उसको एब्जॉर्ब करना, इम्बाइब करना, साथ में छोटे छोटे नोट्स बना लें ताकि हम बाद में उनसे प्रॉपरली आर्ग्यू कर सकें या अपना मैसेज प्रॉपरली फॉर्मुलेट कर सकें. और ये तभी मुमकिन है जब हम किसी की बात दुरुस्त तरीके से खामोशी से सुने. नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का आगाज कर रहा है, that person must be emotionally aware and he or she must be able to influence others from within. अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू मैनेज योर ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू. अब देखिए, कोई ऐसे मौका है जहां गम की कैफियत है, वहां जाके हम हंसना शुरू हो जाएं तो वो तो लगेगा ना कि बहुत अजीब सी हम हरकत कर रहे हैं, ऑफ द टेंजेंट हो गए हैं. तो इमोशनल इंटेलिजेंस से मुराद है कि हम अपनी इमोशंस को भी मैनेज करना सीखें. यानी कि हमें बहुत सारे प्रोफेशनल लाइफ में लोगों से डील करना पड़ता है जिनकी कोई पर्सनल हैबिट्स ऐसी हैं जो कि हमें नापसंद हैं, बट हमें अपने आप को इमोशनली ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को
समझाना पड़ता है कि नो मैटर हमें ये इंसान पर्सनली पसंद नहीं है, प्रोफेशनली वी शुड प्रोफेशनल लाइफ में ये पर्सनल बायस का एंटर होना respected participants, just bear with me. There was a bit of a net issue at my end. अच्छा, respected participants, we may continue. Next is self-efficacy. A person must have faith in himself or herself and his or her capabilities to achieve the objectives of communication. खुद एतमादी अपने अंदर होना, ये सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिपिक्ट करता है. नेक्स्ट इज रिस्पेक्टफुलनेस. Delivering a message with courtesy and respecting the beliefs, values, and norms of the receiver is the essence of effective communication. अब लोगों के कल्चरल बैकग्राउंड को भी मद्देनजर रखना चाहिए. वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि प्रोफेशनली मर्द और औरत दे डू टेंड टू शेक हैंड्स, बट ईस्टर्न सोसाइटी में, हमारे कल्चर में ये जरा मायूब समझा जाता है. तो अगर आपकी जॉब इस नौयत की है कि वहाँ मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं, तो पहले उनको सिखाया जाए, बताया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि यहाँ पे कि हमारे मुल्क में क्या कल्चरली एक्सेप्टेबल है और क्या चीज कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया. फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, हमारी आई कांटेक्ट, ये तमाम चीजें बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जुमरे में आती हैं. तो हम जो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम, ये भी हमने पहले डिस्कस किया. Choice of the correct medium for communication is also a skill. It is necessary to select an appropriate medium according to the situation, priority of the message, and the receiver's point of view. Next is providing feedback. Feedback is a reaction or response. Effective communication is a two-way process. A person must take as well as give feedback to bring forward the other person's perspective too. अब मैं यहाँ बैठ के कहूँ जी मेरे से अच्छा तो लेक्चर किसी ने दिया ही नहीं, मैंने तो जी बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया, तो क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात तो दुरुस्त नहीं है. Respected participants, you are the judge, you are the recipient of the lecture. आप जो हैं, you are the persons who are the best judge. अगर आपको मेरी बात मनोअन समझ में आई, आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप फीडबैक के थ्रू बताएंगे. खाली मेरा अपने आप की तारीफ कर देना तो बिल्कुल ही एक नॉन प्रोफेशनल बात होगी. ठीक है. अच्छा जी, we may move on to the next slide. Significance of effective communication in professional setting. अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनका बहुत फायदा होता है टीम बिल्डिंग में. मैम जी मैम क्लोजिंग टाइम 15 मिनट्स रह गए हैं. जी आई नो. हमारा ऑलमोस्ट 5 मिनट में ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है लेक्चर. थैंक यू. अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल सेटिंग्स.
कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का। ये जब हमने टीम बिल्डिंग करनी है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट करनी है, कोई नई चीज की इनोवेशन करनी है, ये तमाम चीजों में हमें प्रोसेसेस ऑफ गुड कम्युनिकेशन इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, वी मे से सो, यानी एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। Effective communication ensures self-discipline and efficient management. Since the employees are heard by the top management and there is open communication in the organization. Unfortunately, हमारे यहाँ autocratic way है of dealing with the human resource in the organization. Western world में अच्छा, आवाज आ रही है आपको रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स? जी मैम। जी, हम ये डिस्कस कर रहे थे, हमारे यहाँ ऑटोक्रेटिक वे है ऑफ डीलिंग विद पीपल, डीलिंग विद द ह्यूमन रिसोर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। बाहर के मुल्कों में इट्स मोर ऑफ अ डेमोक्रेटिक वे, यानी कि वहां पे जेनिटोरियल स्टाफ ही और शी कैन ऑलवेज वॉक इन, they are encouraged, not always walk in, but they are encouraged rather to go to the CEO of the organization as well and discuss any professional hurdles uh, they are facing. ये open communication के through होता है। Unfortunately हमारे यहाँ अभी ये इतना इस चीज का को encourage नहीं किया जाता। Next is team building. People in the organization work as a team to accomplish common goals. Thus, effective communication boosts the morale of the whole team. टीम हमारी अच्छी होगी तो ही हम गोल्स अचीव कर पाएंगे। किस तरह अचीव करेंगे? थ्रू प्रॉपर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि टीम में हर किसी को एक दूसरे के ऊपर एतमाद है, देयर इज नो फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट या कोई इंट्रीग या पॉलिटिक्स जहां उस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, वही ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तौर पे डेवलप हो सकती है, परफॉर्म कर सकती है। A certain transparency and develop trust, यही टीम बिल्डिंग से भी related है। Effective communication is considered to be a base for building trust and assures sharing of complete information, यानी एम्प्लॉइज को एहसास हो कि उनसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा, उनसे कुछ हाइड नहीं किया जा रहा। There is a certain level of trust and openness amongst the employees. Reduces misunderstanding. Effective communication eliminates the possibility of confusion and misunderstanding by conveying the message clearly and appropriately. अच्छा, facilitate creativity and innovation. जहाँ पे अच्छी communication होगी वहाँ पे encourage किया जाता है employees को to think out of the box. Conventional way of working in the organization या teaching methods employ किए जाती हैं, but in order to maintain the interest of the recipient या students या colleagues, जो भी आपके potential target receivers हैं, उनको इन्वॉल्व करने के लिए, इंगेज करने के लिए इंकरेज किया जाता है थ्रू ओपन कम्युनिकेशन कि आप आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाएं, व्यूज लाएं, कोई नई इनोवेशन लाएं, क्रिएटिविटी को इंकरेज किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी डेवलप्ड कंट्रीज में ही ज्यादा इंकरेज किया जाता है। यहाँ पे भी काम हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स काम करने को, सोचने को इतना इंकरेज नहीं किया जाता। We may move on to the second last slide. Actually, channels of communication. Broadly speaking, communication channels are the means by which you interact
G, formalities of communication. The three major formality levels are formal, informal, and unofficial communication. Formal communication typically includes sensitive information such as policies and company strategies. Informal communication channels are also used for business communication, but are often presented in a more casual manner. Informal communication से मुराद है जिस तरह के आपने you want to go on a leave, you're working in a college और आपने अपने किसी colleague से कहा कि वो आपकी जगह he or she may substitute for you. So इस तरह की छोटी छोटी जो मसले मसाइल हैं एक organization में और वो उस वक्त आप उनको overcome भी करते जाते हैं. These occur in the informal communication channels. Next is unofficial communication. It is an outlier of the three, mostly unrelated to work topics. यानी आपके वही colleagues जिनके साथ आप professional settings में काम करते हैं, उनके साथ आपकी professional relationship के अलावा personal rapport भी बन चुकी है, and you people meet outside of your organization as well, but your topic of discussion is not related to your work, it is entirely personal in nature. This is known as unofficial communication. Acha ji. Now we may move on to the conclusion. Good communication skills are of utmost importance in building professional relationships and achieving one's goals. If we show empathy, display good written and oral communication skills, prepare our messages keeping in mind the 7 C's of communication, and use the appropriate channels, we are likely to overcome communication barriers and succeed in our professional lives. We have moved on to the very end. This is the conclusion. Respected participants, first of all, I apologize for the internet breakdown. It was my pleasure having you as an audience. Thank you. Assalamu alaikum, madam. This is Professor Nadeem Ahmed from Government College Satellite on Gujranwala. I just want to give my feedback that the things you conveyed to us today as a sender was really excellent, because I just want to say that you are a good communicator. Not a good, but I'll say you are an excellent communicator. क्योंकि चीजें तो ordinary थी, but the way in which you communicated really reaches to the core of our hearts. Thank you so much, ma'am.